हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा। टुडे वी विल डिस्कस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग with the topic, let me introduce myself. My name is Mazashir. I have completed my MTech from NIT Warangal. So previously we completed. Now coming to the topic, previously what we completed, the water demand. Okay, we have seen the different types of water demand, and then fire demand, the empirical formula for calculating the fire demand. We have seen the variation in what variation in average demand, like a maximum daily demand or maximum hourly demand, like that. We have seen the Goodrich formula. All those topics are covered in previous lecture. So if you haven't seen, then you can visit to my channel, and from there you can access the playlist of environmental engineering. There you can see the previous lectures to understand the previous topics. Okay. So if you are preparing for GATE EAC, then this lecture will be helpful for you, even if you are uh, in semester in college right now, not um, um, preparing for an exam. Then also this will be helpful to understand the concept, and in future definitely this will gonna help you. Okay. So now coming to the topic, uh, we will start with the population forecasting. So, what is population forecasting? It is the process of predicting future population. Okay, predicting future population, or you can say predicting future population by analyzing. Okay? By analyzing past, or you can say historical data. Okay, तो हमारे पास पास्ट और हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होगा। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रहता है, राइट? क्योंकि एवरी डिकेड गवर्नमेंट पॉपुलेशन काउंटिंग होती है ना। तो वी हैव द पास्ट और हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, currently it's like 2025. Okay, so if we have the data till 2025, okay, then um, uh, till 2025 and the previous data before 2025. Okay, like we have data in 2021, or suppose 2011, like that. Then we'll try to predict for the future upcoming population. For example, suppose we try to predict for 2031. Okay, 2031. So this process is known as population forecast. Okay, so why we do that? Why we forecast? Okay, why we try to predict? Because if you know that in the previous lecture, like your responsibility is to
As an engineer, your responsibility is to design water supply system. Okay, so a water supply system has different units or different components. For example, we have source, right? We have source. Okay, we have a water treatment plant. Okay, we have pumping house, right? Each have different design period, and we have distribution pipe as well, and we have main pipes, main supply pipes as well. Okay, distribution main pipe, or we can say distribution pipe. Okay, so the source, what is source? Source is like dam or reservoir from where you take the water. Okay, dam or reservoir. Okay, so each component or each unit has different design period. For example, generally we design a dam or reservoir for 50 years. Okay, suppose you have to build a dam today in present time, right? So you will design it for upcoming or new for upcoming 50 years. Okay, then suppose uh, today is some population, like suppose p, then after 50 years this population definitely will increase, right? Okay, then if you design or the capacity of this reservoir is to satisfy for the present population only, then this will be unfit for the upcoming days, right? In next decade or maybe after some years, this unit will be unfit. It will not fulfill the demand, right? Because you have designed it based on the present condition, right? And similarly, the water treatment plant is designed for generally 15 years, right? And similarly, the pumping house is generally designed for 30 to 50 years, right? And these pipes or distribution mains designed for 30 years generally, right? So therefore, uh, if the population increase, then definitely the water demand increase. Then therefore, this population forecasting is plays very important role, right? So if you have to design the dam or reservoir in present, right? Then what you will do? You will predict the population for 50 years, so that you will design according to that demand. Okay, according to future demand, right? तो समझ गए आप कि अगर हम जब भी डैम भी हमें बनाना है, ठीक है, तो करेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम नहीं डिजाइन करेंगे, क्योंकि आप आने वाले दिनों में जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर ये इस पे इसकी कैपेसिटी से ऊपर हो जाएगा, ये फिर अनफिट हो जाएगा, ठीक है ना, ये कंपोनेंट। सो दैट्स वाई हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ते हैं और इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि इसका यूज क्या है, राइट? तो अब हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। ठीक, so population growth is nothing but change in, sorry, change in population, right? Between two dates. Okay. Suppose T1 में था पॉपुलेशन P1, P2 में था P2। ओके, तो सिंपली जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा हमारा इस T2 माइनस T1 इंटरवल में कितना हो जाएगा, सिंपली जो चेंज है पॉपुलेशन का वही हो जाएगा, ठीक है। तो यही, और अब हम लोग आते हैं कि इसी, ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ,
सिमिलरली हमारा होता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट। तो जो रेट होता है पॉपुलेशन चेंज का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन with respect to time is called population growth rate, right। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स डीपी अपॉन डी टी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि सपोज करो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो सपोज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है हमारा पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। ग्रोथ रेट पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। ओके, और अगर डीपी अपॉन डी हमारा निगेटिव, ठीक है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव है तो इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, यानी पॉपुलेशन घट रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन चेंज किस पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन चेंज जो होता है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे कि चेंज जनरली डिपेंड्स, जनरली की जगह मेजरली कहते हैं, मतलब मेजरली मतलब ज्यादातर 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेजरली डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट क्या है, बर्थ, पहला हो जाएगा हमारा बर्थ, कितना बर्थ हो रहा है सिटी में, है ना। दूसरा हो जाएगा हमारा डेथ, तीसरा हो जाएगा हमारा माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन, तो माइग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि मूवमेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अब जैसे देखते होंगे कि बहुत सारे लोग गांव से छोड़ करके शहर की तरफ आते हैं, इधर कुछ कमाने के लिए या बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, के लिए वो मूव कर जाते हैं शहर की तरफ, सिटी में, ठीक है ना, फ्रॉम विलेज टू सिटी। तो इसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन, ठीक है ना। तो मेजरली जो है, सॉरी, पॉपुलेशन चेंज जो है मेजरली ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन दिस 3 थिंग। ओके, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन लाइक वार फॉर एग्जांपल, ये एक पॉइंट है जस्ट कि समटाइम्स क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन लाइक क्या, वार और नेचुरल डिजास्टर shows
सडन चेंज इन पॉपुलेशन, राइट। तो ऐसा कभी अगर होगा तो पॉपुलेशन में सडन चेंज होता है, ठीक है। ओके, तो बेस्ड ऑन दीज थ्री फैक्टर, ये थ्री फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या देखा गया है कि पॉपुलेशन जो क्या होगा आफ्टर टाइम टी, वो हो जाएगा पी नॉट प्लस टोटल बर्थ माइनस डेथ प्लस आई माइनस सी, ठीक है। जिसमें से हमारा पी नॉट क्या हो गया, यहाँ पे पीटी हो गया हमारा, पहले पीटी लिख लेता हूँ, पीटी हो गया हमारा पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी, ठीक है। पी नॉट हो गया हमारा इनिशियल पॉपुलेशन, सॉरी, क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल पॉपुलेशन, ओके, इनिशियल पॉपुलेशन, है ना। ओके, डी क्या हो जाएगा टोटल बर्थ बिटवीन दिस पी नॉट टू आई मीन initial time to till this time, right, till the time after t, whatever total birth, which is like b, and d is like death, total number of death, ठीक है, total number of birth and total number of death, ठीक। I is for immigrant, okay, E is for immigrant, ठीक है। So what is this immigrant means, like the people who is who came from another city to this city, right, of which we are calculating the population, right। तो जिस भी सिटी का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं पॉपुलेशन का, वहाँ जो भी अदर सिटी से जितने लोग आए वो इमिग्रेंट्स हुआ, ठीक है। और ये ई से जो इमिग्रेंट्स हुआ, ये क्या हुआ कि उस सिटी से जो लोग बाहर गए, ठीक है, सपोज ये हमारा सिटी है, ठीक है। तो जितने लोग आए बाहर से किसी और सिटी से, हो गया ये आई इमिग्रेंट, आई से। और जितने लोग इस सिटी से बाहर गए किसी और सिटी में, वो हो गया ई, ठीक है, समझ गए। तो ये है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो ग्रोथ रेट कर्व क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, जो कि है हमारा समय, क्या है हमारा ग्रोथ रेट कर्व, ठीक है। तो ग्रोथ रेट कर्व क्या होती है, ठीक। तो ऐसा देखा गया है कि इफ unpredictable condition doesn't show the sudden change in population, then population of a city follows a pattern, like population growth of any city follows a pattern, ठीक है। If population is plotted
on graph with respect to time, right? If population graph is plotted with respect to time, then it was seen, sorry, it is seen that it follows a pattern, okay? And the graph is like S-shaped graph, okay? So what we have seen, if no unpredictable situation is there, then graph of population with respect to time shows a similar pattern, ठीक? किसी भी सिटी का जो पॉपुलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो एक सिमिलर पैटर्न शो करेगा, अगर, ठीक है, अगर वहाँ कोई भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, ऑफ एस शेप, किस तरह का रहेगा ये, एस शेप का ग्राफ होगा, ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एस शेप का होगा, ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्राफ होता है जनरली। तो सपोज करिए कि हमारा सॉरी ये हमारा एक वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक मिनट, ये यहाँ से नहीं आया भाई, यहाँ से खींचा जो, नहीं हो रहा था है, एक मिनट, सॉरी, मुझे लगता नहीं आएगा, आ गया, सॉरी यार। तो ये हमारा अगर टाइम, ठीक है, टाइम एक्सिस, और यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन टी, ठीक है, तो सपोज टी इक्वल टू जीरो में कुछ तो इनिशियल पॉपुलेशन रहा होगा जो कि है हमारा पी नॉट, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, एक मिनट, इस शेप का ग्राफ देखता हूँ, अगर होगा तो मैं प्लॉट करता हूँ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कर्व जो होता है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे, ये हमारा पॉपुलेशन वर्सेस टाइम हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन का जो रेट है, ठीक है, ग्रोथ रेट है, और ग्रोथ रेट वर्सेस टाइम अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह का है, ठीक, ठीक,
इसमें अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है इनिशियली कुछ पॉपुलेशन रहा होगा पी नॉट, और फाइनली आफ्टर सम टाइम ये देखा जाएगा कि सीटी का जो पॉपुलेशन होता है वो फिर कांस्टेंट होने लगता है। ठीक है, तो जहाँ पे ये कांस्टेंट होने लगता है वहाँ पे इसको सैचुरेशन वैल्यू कहते हैं, या फिर इसको सैचुरेशन पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है ना, कि अब हमारा जो सीटी है उसका पॉपुलेशन सैचुरेट हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग पी एस भी कहते हैं, पी एस से डिनोट करते हैं। ठीक, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि जो इनिशियल है, इनिशियल स्टेज, ये सपोज ए है और ये बी है। ठीक, और ये जो ग्राफ है ये डॉटेड लाइन से, ये हमारा ग्रोथ यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ग्राफ है, और ये पॉपुलेशन वर्सेस टाइम का है। ये ग्रोथ रेट वर्सेस टाइम का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इनिशियली जो वो है ग्रोथ रेट भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियली जो है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन है, फास्ट इंक्रीज कर रहा है, रैपिडली। ठीक है, इनिशियली इस सेक्शन ए से बी के सेक्शन। ठीक, फिर हमारा दूसरा सेक्शन आपको आएगा, दूसरा सेक्शन आया यहाँ से ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ सपोज यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, और एक मिनट, ये जो है हमारा ये मैक्स रेट हुआ, फिर यहाँ से रेट घट गया, ये जो है हमारा मैक्स रेट। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा। ठीक है, सपोज सी है और ये यहाँ पे डी है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ग्रोथ रेट देखो चेंज कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो भी इंक्रीज कर रहा था जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था। ठीक है, फिर इस पॉइंट के बाद पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज करने लगा, तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब डी से ई के पास देखिए, डी से ई तक में क्या है कि ग्रोथ रेट जो है वो भी टाइम के साथ साथ घट रहा है ना। तो यहाँ पे जब dp अपॉन dt होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये हो जाएगा सैचुरेशन पॉपुलेशन माइनस पी। ठीक, इस सेक्शन। ठीक, और ये बी से डी के सेक्शन में जो है हमारा dp अपॉन dt क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये तीसरा सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन क्या है, बी से डी ग्रोथ रेट कांस्टेंट, इनिशियली ग्रोथ रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। फाइनल सिचुएशन में जब पॉपुलेशन जैसे जैसे सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहा होता है तो हमारा ग्रोथ रेट क्या होता है, dp अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एस माइनस पी। पी एस क्या है यहाँ पे, सैचुरेशन पॉपुलेशन। अब जैसे यहाँ देखिए ये टाइम के साथ पी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पी जो है इंक्रीज कर रहा है, तो ये पी एस माइनस पी क्या होएगा, ये कंप्लीटली जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये पी एस माइनस पी क्या है, वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि पी बढ़ रहा है, पी एस कॉन्स्टेंट सेम है, सैचुरेशन पॉपुलेशन। जैसे जैसे पी बढ़ेगा तो इसका कंबाइंडली जो कंबाइंड वैल्यू होगा पी एस माइनस पी वो घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीन पार्ट, है ना। तो इनिशियली जो देखा जाता है कि ग्रोथ रेट इनिशियल इन सेक्शन ए से बी में क्या देखा गया,
कि कहाँ गया, ए से बी में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखा गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी पी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, पॉपुलेशन की। ठीक है, समझ गया। फिर हमारा जो बी से डी का पार्ट था, इसमें क्या देखा गया कि कांस्टेंट ग्रोथ रहा, है ना। इनिशियली कह रहा, क्या रहा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, फिर हमारा डी से ई में जो हो गया, वहां पे हमारा डी पी अपॉन डी पी अपॉन डी टी जो होएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एस माइनस पी के। ठीक है, तो इस तरह का कुछ ग्रोथ रेट कर्व होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का क्या क्या मेथड होता है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मेथड। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। आज के लेक्चर में मैं बस क्या क्या मेथड होता है वो लिखूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर से इसको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, है ना, कि हर एक मेथड में क्या है। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक, दूसरा मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक, फिर आ जाइए हमारा तीसरा मेथड, तीसरा जो है हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, फिर हमारा चौथा जो है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारा पांचवा हो जाएगा ग्राफिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, और एक्सटेंशन मेथड, और एक्सटेंशन मेथड। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारा छठा हो जाएगा कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारा सेवेंथ हो जाएगा मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड। ठीक है, मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड। ठीक है, फिर हमारा आठवां हो जाएगा रेशो मेथड, और इसी को कहते हैं अपॉर्शनमेंट
असाइनमेंट मेथड भी कहते हैं इसी। ठीक। फिर हमारा लास्ट लास्ट नाइन्थ वाला हो जाएगा लॉजिस्टिक कर्व मेथड। ठीक। तो ये हमारा टोटल 9 मेथड पढ़ना है हमको। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए। और जब हम लोग को किसी सिटी का पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना होता है, उस सिटी के कंडीशन सिनेरियोज और जो वहाँ का पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग एक जो भी सुटेबल मेथड होगा इन सब में से वो एक मेथड चूज करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हर एक सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये हर एक मेथड को डिटेल में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक। तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। ठीक। और अगर कोई डाउट है आपको, ठीक, तो वो डाउट आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। ठीक। और वहाँ पे आप अपना डाउट रख सकते हैं। मैं वहाँ पे डाउट रिजॉल्व कर दूँगा। ठीक। ओके। और पीछे वाला लेक्चर आपको देखना है इससे पहले, जो इससे पहले की टॉपिक कवर हुई, तो आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने। प्लेलिस्ट को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए या सेव कर लीजिए। ठीक है। या फिर इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर मेरे पास आई बटन में भी मैं वो प्रीवियस लेक्चर का लिंक डाल दूँगा। ठीक। और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का इस स्क्रीन पे आपको इस इंडी स्क्रीन पे प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक दिख जाएगा। डायरेक्टली आप वहाँ से प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके। थैंक यू वेरी मच।